Asalaamu Alaikum. Good evening to my all. Today in this video, I am going to discuss about cerebrovascular accident, or it's also known as stroke. Okay, so before I start this video, I have a small request. Please watch this video till the end so that you can get all the points clearly understood. Okay, so without wasting time, let's start today's topic. Okay, so as we are going to discuss about cerebrovascular accident, first we should know what is the literal meaning of this term. Okay, that is cerebro means brain, this one is cerebro, this means brain, and vascular means blood vessels. The blood vessels which are providing the blood supply, or which are providing the blood oxygen and nutrients, understanding. So there may be some problems or some type of interruptions will be related to these blood vessels, so that's what it is known as cerebrovascular accident. Okay, so if we have to define this cerebrovascular accident, we can define in such a way that cerebrovascular accident or stroke, it can be defined as when the blood supply to the part of your brain, understanding, when the blood supply to the part of your brain is interrupted or reduced, यानी जब भी आपके ब्रेन में यानी आपके ब्रेन के टिश्यू के अंदर या जो ब्रेन होता है उसके एक पार्ट के अंदर जब वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होती है या ब्लॉक होती है या कम होती है, ठीक है ना, और जिसकी वजह से डिप्रेवेशन रेट बढ़ जाता है ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर जो टिश्यूज होती हैं उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है. एंड व्हाट विल बी हैपनिंग, देयर विल बी द इनसफिशिएंट ऑक्सीजन supply to the brain tissues, which will lead anoxia, yeah, we can say hypoxia, and it can lead also the death of the brain cells. Now we can say death of brain tissue. So what is this cerebrovascular accident? It is a disease, understanding, which is characterized by insufficient, or we can say interruption, or we can say reduced blood supply to the portion of the brain, understanding, ठीक है ना, yeah, which includes the tissues which may not be getting enough nutrients and oxygen, leading to the damage of the brain, or we can say leading to the stroke. So this is the stroke. Now next thing which we are going to see is about incidence, or we can say prevalence, ठीक है ना. So this is the one of the main leading cause of death, ठीक है ना, death and disability, यानी जो fertility है ना, फर्टिलिटी रेट जो है ना वो इसकी बहुत ज़्यादा है दुनिया के अंदर, ठीक है ना. ये मेन लीडिंग कॉज होता है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, ठीक है. और इसके अंदर हम देख सकते हैं एस्टिमेटेड प्रिवेलेंस, अंडरस्टैंडिंग, और रूरल एरिया जो इंडिया होता है, इंडिया के अंदर जो रूरल एरिया है, रूरल पॉपुलेशन है और अर्बन पॉपुलेशन है. अगर हम रूरल की बात करें तो वी कैन से दैट 84 to 262 केसेस आर ऑकरिंग पर 1 लाख पॉपुलेशन, यानी 1 लाख लोगों में से कितना 84 to 262 लोग अफेक्ट होते हैं, यानी ठीक है ना, अफेक्ट होते हैं इस डिजीज की वजह से, ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज द अर्बन. अर्बन में क्या होता है 334 to 424 पर्सन जो है ना वो डाई होते हैं पर वो उनका केस होता है पर 1 लाख पर्सन. एंड इट इज आल्सो हैविंग अ हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट. 2018 के अंदर जब सेंसस किया गया, WHO के सेंसस के दौरान पाया गया था कि कोलकाता के अंदर अगर हम बोलेंगे कि 100% यानी 42% जो केस थे, ठीक है ना, वो पेशेंट मर गए थे, ठीक है, यानी सीवियर केस के अंदर वो पेशेंट मर गए थे. 42% यानी 42% लोग जो थे वो मर गए थे, ठीक है ना, किसकी वजह से, इसी कंडीशन की वजह से, इसी डिजीज की वजह से, जिसको हम बोलते हैं cerebrovascular accident. Okay, now next one, let's come to the cause. What are the causes of this stroke? First we will see the cause, followed by the risk factors. There are mainly, we can say there are mainly two main causes. Okay, the first one is the ischemic stroke. First you must know that what is ischemia. Ischemia means reduced blood supply to the brain, yeah, we can say anywhere. So if we can say the reduced or insufficient blood supply, because that blood, it contains nutrients and oxygens. When there is an insufficient blood supply to the brain tissue,
ठीक है ना. It may also lead to the death of the brain tissue. Why? Because there is the insufficient oxygen and nutrition supply to the cells and tissues of brain. So that's the first one is ischemic. And this ischemic stroke it contributes 80%. यानी 80% जो केस आते हैं ना स्ट्रोक के या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के, वो मेनली इस्कीमिया की वजह से होता है. तो उसके अंदर मेनली दो होता है, एक होता है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक और दूसरा होता है एम्बोलिक स्ट्रोक. व्हाट इज थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक? यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, यानी क्लॉट फॉर्मेशन और थ्रोम्बस फॉर्मेशन वी कैन से इनसाइड द ब्लड वेसल. जो ब्लड वेसल होती है ना उसके अंदर, या वो आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई देती है, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग, या जो ब्रेन को ऑक्सीजन सर्व करती है और टिश्यू न्यूट्रिएंट्स. सो वहां पे क्या होता है, ब्लॉकेज. आप देख सकते हो जब यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ, जब ब्लड यहाँ से आएगा तो वो ब्लड आगे जाएगा ही नहीं. देयर इज द ब्लॉकेज एंड दिस ब्लॉकेज में लीड टू द डेथ ऑफ द ब्रेन सेल्स. विद इन मिनट्स में ब्रेन का सेल्स का डेथ हो सकता है. दैट इज नोन एज द थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक. नेक्स्ट वन इज द एम्बोलिस. अच्छा, थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन. और जो एम्बोलस, अगर हम एम्बोलस की बात, एम्बोलस का मतलब होता है मटेरियल और सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी मूव्ड, व्हिच कैन बी मूव्ड, अंडरस्टैंडिंग, व्हिच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. कभी कभार आपकी बॉडी के अंदर, इसलिए हम बोल सकते हैं इसको, दिस थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कैन ओकर नियर टू द ब्रेन टिश्यू या ऑन द ब्रेन जो होता है ना उसके नियर या उसके ऊपर से, लेकिन जो ब्लड वेसल होगी. लेकिन जो एम्बोलस है या एम्बोलिक स्ट्रोक है, ये आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना. जो भी ब्लड सप्लाई, जो आर्टरीज है, ठीक है ना, जो भी ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन को, अगर वो पेरिफेरीज के अंदर, मतलब ब्रेन से दूर है या बॉडी के अंदर है, जो ब्रेन को सप्लाई करती है ब्लड, तो उसके अंदर अगर एम्बोलस है, ठीक है ना, दैट इज वी कैन से मटेरियल, डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना, इनसाइड द this one, that artery, it can pass to the brain and it can reduce, and it can cause ischemia, it can reduce the blood supply to the brain, leading stroke or leading CVA. Okay, so this is about the thrombotic and embolic. Next one is the hemorrhagic stroke. What is hemorrhagic? Hemorrhage का मतलब ही होता है, ठीक है ना, ब्लीडिंग. यानी जब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होता है, यानी जो आर्टरी होती है जब वो रप्चर होती है या जब वो ब्रेक होती है, ठीक है ना, जब उसका स्प्लिट्स होता है, ठीक है, या उसका ब्रेक होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मेनली वहां पे ब्लड लीक होता है या ब्लड वेसल रप्चर होता है. उसकी वजह से जो ब्रेन सेल्स होती है ना वो डेथ होती है, वो डाई होती है, तो जिसकी वजह से वहां पे क्या हो सकता है, ब्रेन टिश्यू डेथ हो सकता है, और जो कॉज कर सकता है इसकी, जो कॉज करता है स्ट्रोक. ठीक है, तो उसके अंदर आता है मेनली फर्स्ट वन इज द इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज. इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज, सेरेब्रल का मतलब होता है ब्रेन, यानी जो ब्रेन है ब्रेन के अंदर, इंट्रा मींस इनसाइड. ओके, जो ब्रेन के अंदर जो भी एक्चुअली ब्लड सप्लाई होती है ना, जो ब्लड वेसल होती है, मेनली जो ब्लड वेसल होती है ना, उसका रप्चर होता है. रप्चर मींस ब्रेकेज या ब्रस्टिंग ऑफ दैट आर्टरी. जब उस आर्टरी का ब्रस्टिंग हो गया तो ब्लड विल बी लीकड, ब्लड लीक हो जाएगा और वो टिश्यूज के अंदर जाएगा और टिश्यूज डेथ हो जाएगा, टिश्यू मर जाएगा, क्योंकि टिश्यू के अंदर अच्छे से ब्लड सप्लाई, अच्छे से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई पूछा ही नहीं, तो जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यू डेथ हो सकता है. नेक्स्ट वन द सब अरेक्नॉइड. व्हाट इज द स्कल के दरमियान जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं मेनली सब अरेक्नॉइड स्पेस. तो सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर जो भी आर्टरीज होंगी, ठीक है ना, विच आर नियर और विच आर पासिंग ऑन नियर और ऑन, या वी कैन से टू दी ब्रेन. तो जब उनका रप्चर हो जाएगा या वो ब्रस्ट हो जाएंगे, तो वहां से ब्लड बाहर निकलेगा, ब्लड लीक हो जाएगा, जिसकी वजह से डेथ हो सकता है, टिश्यू, ब्रेन का टिश्यू मर सकता है, क्योंकि वहां पे अच्छे से प्रॉपर ब्लड सप्लाई या प्रॉपर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं पहुंचा है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ट्रांजिएंट को हम बोलते हैं कभी कभार मिनी स्ट्रोक. यानी ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पोररी पर्पस. ये कभी कभार मतलब थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, कभी कभार सिर्फ इसमें मेनली 3 to 5 मिनट जो है ना ब्रेन के अंदर, जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं पूछता है, सिर्फ 5 मिनट, तो इसकी वजह से मिनी यानी थोड़ा सा डैमेज होता है, थोड़ा सा सेल्स जो होती है जब ब्रेन की, वो डेथ होती है. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक. अंडरस्टैंडिंग? सो दिस वाज द कॉजेस. नाउ नेक्स्ट वन इज द रिस्क फैक्टर्स. यानी कौन कौन से डिजीजेस हैं या कौन कौन से कंडीशंस हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकती है, जिसकी वजह से जो डेवलप कर सकती है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट. फर्स्ट वन इज ओबेसिटी और ओवरवेट. अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर हाई फैट है, ज्यादा फैट प्रेजेंट है, या वो ओवरवेट है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है. नेक्स्ट इज द हैवी ड्रिंकिंग. अगर कोई ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करता है, ठीक है ना, अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करता है, उसकी वजह से भी हो सकता है. फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, इफ एनीबॉडी इज लिमिट, या कभी
कोई पेशेंट ऐसे भी होता है जो बेड रिडन होता है, जो एडमिट होता है, जो बहुत टाइम तक यानी सालों के सालों वो बेड पर ही रहता है, उसका रेस्ट होता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जब अच्छे से ब्लड मूवमेंट नहीं होता अंदर से, जब वो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उसकी वजह से भी सीवीए हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है सिगरेट स्मोकिंग। वेरी गुड, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, जो उसके अंदर निकोटीन है ना, वो अफेक्ट कर सकता है ब्लड के अंदर, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, तो जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई में या रुक सकता है, या ब्लड कम ब्लड सप्लाई प्रोड्यूस हो सकता है किसको, ब्रेन के अंदर, या वो टॉक्सिसिटी ये ब्रेन के टिश्यूज को डैमेज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, यानी हम बोल सकते हैं कि हार्ट फेलियर या वी कैन से कार्डियक अरेस्ट यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मायोकार्डाइटिस। ठीक है ना, दीज डिजीज कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट, और इट कैन आल्सो कॉज द डेवलपमेंट ऑफ दिस सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द डायबिटीज। अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई है, ठीक है ना, अगर ज्यादा शुगर लेवल है तो उसकी वजह से भी यानी हाइपरग्लाइसीमिया है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपको सीवीए हो सकता है। जब आपका जो पेनक्रियास होता है उसके अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं ना, आइलेट्स ऑफ लंग, वो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, तो जब इंसुलिन ज्यादा स्टिमुलेट होगा तो वो क्या करता है, वो ब्लड शुगर लेवल जो है ना वो हाई होता है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो जाएगा ब्रेन के अंदर, और जिसकी वजह से ब्रेन का सेल्स डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, हाई ब्लड प्रेशर जो है ना, ये कंट्रीब्यूट कर सकता है कि जो हार्ट होता है ना, हार्ट को क्या करेगा, इट विल मेक द हार्ट टू बीट फास्ट, ये हार्ट बीट फास्ट करेगा और वर्कलोड भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप नहीं करेगा, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है, तो जिसके थ्रू जो ब्लड है ना वो बहुत कम ब्रेन के अंदर जाएगा, और जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स या टिश्यू डेथ हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द एज। अगर एज हो सकता है, अगर मोर देन 55 ईयर्स यानी एजिंग प्रोसेस की वजह से भी हो सकता है। देन कार्डियोवास्कुलर डिजीज में पहले ही बोला, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक अरेस्ट, अंडरस्टैंडिंग, सो एथेरोस्क्लेरोसिस। एंड नेक्स्ट वन इज द अफ्रीकन अमेरिकन। जो अफ्रीकन ये रिस्क फैक्टर्स एक्चुअली जो अफ्रीकन से होती है, जो अफ्रीकन जो कंट्रीज में रहते हैं या अमेरिकन जो कंट्रीज में रहते हैं, तो उनका बहुत ज्यादा चांसेस होता है ये डेवलप होने में। लास्ट वन इज द मेन। अगर हम रेशियो देखेंगे मेन और वुमेन का, मेल्स आर मोर प्रोन, यानी जो मेल होते हैं उनके अंदर ज्यादा पाई जाती है कि उनके अंदर ये केस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। बट अगर फीमेल्स के अंदर वंस होता है, अगर फीमेल्स के अंदर ये सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया ना, तो उनके अंदर ना डैमेज जल्दी होता है, रैपिड डैमेज होता है। ठीक है, और डेथ भी जल्दी होती है एज कम्पेयर टू द मेल्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन, इंसिडेंस, कॉजेज एंड वी कैन से रिस्क फैक्टर्स ऑफ this one cerebrovascular accident. Okay, so now let's talk about the clinical features or clinical manifestations of this cerebrovascular accident. Okay, so as this disease may be fatal, okay, this disease may be fatal, so it requires an emergency medical attentions. Okay, so what are the symptoms which you can see or which you can identify from the patient, so that you can give him the immediate treatment, understanding. First of all, you can see these symptoms. Okay, the symptoms are B fast. Okay, so B means balance change, that means mental gait problems, yani a patient who won't be able to coordinate properly. ठीक है ना, then in the eyes there will be the blurred vision, understanding, and in the face there will be the facial drooping, it means face will look uneven. ठीक है ना, there will be the asymmetry of the face, understanding, and arms and leg weakness will be there, understanding, and there will be a speech or slurred speech, any speech but the patient won't be able to open the mouth even though he won't be able to speak or talk. Okay, then next one is the T means time. Don't stop means you should not wait. When you are seeing these symptoms through the physical examination, you are seeing these symptoms, you can immediately call to 911, understanding, call this 911, so you can get the immediate help and you can treat the patient as soon as possible. Next one is the diagnostic question. How you can diagnose? First of all, I have already told you physical examination. If you can see these symptoms, you can see these symptoms, so you can get that patient is having the cerebrovascular accident, having stroke. Then blood test also, you can carry out the blood test, and in the blood test mainly you are going to see the hyperglycemia, and CT/MRI means they are the radiological x-rays, some diagnostic evaluation in which you are going to, and doctor is going to draw the x-rays, okay, beam of x-rays into the area that is in the brain
understand, in order to detect the abnormalities, understand, in order to detect the embolus formation, or we can say clot formation. The next one is the carotid ultrasound. जो carotid artery होती है उसके अंदर आपको जो डॉक्टर होगा, ठीक है, उसको अल्ट्रासाउंड करना है. So he can also use a transducer in order to pass the light trace into the particular carotid artery, so that the reflection of the light, the light will be reflected back to the transducer and the pictures will be shown on the screen. Okay, then cerebroangiogram. Angiography or angiogram means examination of the cerebral vessels. Okay, so we can say blood vessels. Then last one is the echocardiogram. You can also check for the blood. You can also check for the blood sound, heart sound. The heart sound या electric या heartbeat of check कर सकते हो, ठीक है ना. And you can also see there maybe the shallow, we can say sometimes there will be the rapid heartbeat, or we can say irregular heartbeats. Now next one is the management. How you can manage? You can manage based on the causative agents. You have to treat the underlying cause. The first one is the ischemic cause. Ischemic stroke में आप लोग क्या देखते हैं? Mainly there is वहाँ पे तो एक क्लॉट फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से, और दूसरा होता है एम्बोलस की वजह से भी हो सकता है, और क्लॉट. सबसे पहले आपको क्या करना है? यू हैव टू गिव द एंटीप्लेटलेट मेडिकेशंस एंड आल्सो यू हैव टू गिव द एंटीकोआगुलेंट्स, एंड यू विल बी डायरेक्टली पुट और यू विल बी डायरेक्टली इंजेक्ट द मेडिकेशन इनसाइड द ब्रेन फॉर द क्विक एक्शन, फॉर क्विक रिलीफ, understanding. And patient he will be having a severe headache. When he will be having a severe headache, he won't be able to tolerate the pain. Okay, so that time you need to give the emergency drugs directly. You have to inject in the brain in order to treat these conditions. Okay, next one, you can also go for the endarterectomy. It means that if there is a formation of the clot in the carotid artery, you can remove the clot, or you can also do this one, that is thrombectomy. You can remove of the thrombus from, you can say clot formation from the blood artery, from the blood vessel, that is carotid artery. Okay, and if the artery is damaged, fully damaged, you can also repair the carotid artery. The next one is the angioplasty and stent replacement. You can also place a stent inside the artery, understanding whether it is the coronary artery, it's a carotid artery, wherever the defect has come, you have to place the stent, and along with the stent, the doctor is going to place the balloon. So then later on, when there is the inflation of that balloon, the carotid artery, or we can say the coronary artery, will be inflated, will be dilated, and there will be the promotion or improvement in the blood supply to the brain. Okay, then last one is the clot removing. That means we can say thrombectomy, okay, by the stent retriever. So this is about the ischemic stroke. Next one is the hemorrhagic stroke. अगर hemorrhagic means when there is a blood vessel get ruptured or leaked, ठीक है ना. So उसमें हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? उसमें हम क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट मेनली दे सकते हैं? सर्जिकल ब्लड वेसल रिपेयर. अगर ब्लड वेसल डैमेज हुआ है, promptly damaged हुआ है, then we can repair the blood, we can remove, and we can do the revascularization. Next one, the surgical clipping. Surgical clipping आप mainly कब करते हो? Mainly when there is mainly what we can say, when there is mainly the formation of the aneurysm. Understanding? Aneurysm means balloon weakening of the blood arteries, या we can say blood lining. जब blood arteries weakening होता है, वहाँ पे कुछ balloon type shape बनता है, ठीक है. And if that balloon, that aneurysm, if that ruptures, it can cause severe complication. It can cause death also. And next one is the surgical coiling, ठीक है ना, या we can say endovascular embolization. यानी blood vessel के अंदर आप क्या कर सकते हो? You can also put some coilers. You can also insert some metallic coilers in order to close the ruptured or leaked blood vessels. And next one is the removing AVM. What is AVM? Arteriovenous malformation. यानी आर्टरी और वीनस के दरमियान अगर कोई malformation है जिसकी वजह से disruption of blood vessel होता है, या anoxia होता है, hypoxia होता है, ठीक है ना. So that time you can also remove that part only, that arteriovenous part only you can remove, and you can replace, you can implant new one in order to improve the blood supply to the brain. So this was all about the surgical treatment. So I hope you have अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है ना. आज की इस वीडियो या क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करते हैं, तो मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना. सो तब तक के लिए दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.